Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum students. I'm your English teacher Miss Fakhra Fiaz. Today is Monday 20th July. Students, comprehension is very important part of our final assessment and it is mostly unseen. For this you need to be creative and you need to enhance your writing skills. That's why I have planned to teach you some basic rules and structures which will be beneficial for you. I am going to start from the initial level so that you may learn gradually. Therefore, don't miss any lecture and work regularly. Today, I'll tell you about vowels and consonants and more about verbs. So, let's start our lesson. There are 26 alphabets in English. जब आप इंग्लिश की ABC पढ़ते हैं तो उसमें टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 हैं. Out of which these 5 alphabets are very special. A, E, I, O, U. These 5 letters are called vowels. Except A, E, I, O, U. All other letters are called consonants. 26 letters altogether. अल्फ़ाबेट्स ABC में 26 लेटर्स टोटल हैं. उनमें से 5 वाउल्स हैं. कौन से हैं? A, E, I, O, U. और इन 5 लेटर्स के अलावा, एक्सेप्ट मीन्स अलावा, बाकी सब लेटर्स का नेम क्या है? कंसोनेंट. आप देख सकते हैं यहाँ पे वो लेटर सारे लिखे हुए हैं कंसोनेंट्स, लेकिन बीच में आप यू कैन सी द ब्लैंक स्पेसेस. इट मीन्स दैट vowels are not written here. These are only consonant letters. So let's read it. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Z is pronounced in 2 different ways, Z and Z. In British pronunciation, we say it Z, while in American accent, in American language, we say it as Z. जो ब्रिटिश हैं, जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं DMC में, उसमें हम इसको Z बोलते हैं और जो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है उसमें इसको Z बोलते हैं. So there are 21 consonants and 5 vowel letters in English alphabets. 26 together, all together कितने हैं? 26. उसमें से 5 vowels और 21 कंसोनेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट मैंने इस चीज़ को यूज़ करना है वाउल्स और कंसोनेंट्स को. दैट्स वाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इट. सो बी क्लियर अबाउट इट. 5 वाउल्स एंड 21 कंसोनेंट्स. वाउल्स आर A, E, I, O, U and all the rest are called consonants. Let's read aloud these sentences and just notice the change in verb. आपने ये sentences टीचर के साथ loudly बोलने हैं और आपने सेंटेंस के लेफ्ट राइट बिल्कुल फोकस नहीं करना. इधर आपको इतना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं कि क्या लिखा हुआ है. जस्ट फोकस दीज रेड वर्ड्स. These are our today's topic. These are the verbs. You already know verbs are action words. इसमें different action words हैं sentences में. Let's read. Julia cleans her room. Cleans. Its base verb is, real verb क्या होता है? Clean. उसके आगे हमने क्या ऐड किया है? S. Cleans. She pushes the door. Push.
बेस वर्ड क्या है, ओरिजिनल वर्ड क्या है, पुश, और पुश के आगे हमने क्या लगाया है, ई एस, पुशेस। क्या ऐड किया है, ई एस। क्लीन्स में हमने एस ऐड किया है और पुशेस में हमने ई एस ऐड किया है। नेक्स्ट इज किम ड्राइव्स द कार केयरफुली। ड्राइव्स, ड्राइव, ड्राइव रियल वर्ड ये है, बेस वर्ड इसको कहते हैं, रियल वर्ड ड्राइव ई पे ख़त्म होता है, और हमने आगे इसके क्या ऐड किया है, एस, ड्राइव्स। किम ड्राइव्स द कार केयरफुली। जॉन टीचेस इन अ स्कूल। टीचेस, टीच आपका सी और एच, च साउंड, सी और एच को क्या बोलते हैं, च साउंड। जब ये मिलते हैं सी और एच तो इनकी साउंड बन जाती है च, टीचेस। तो च के आगे हमने ई एस ऐड कर दिया है। जॉन टीचेस इन अ स्कूल। सो लेट्स रीड अगेन, क्लीन्स, पुशेस, ड्राइव्स, टीचेस। क्लीन के आगे एस ऐड करते हैं, पुशेस के आगे ई एस, ड्राइव्स के आगे फिर से एस, और टीचेस के आगे ई एस। My sister carries a beautiful handbag. Carries. The base word is carry, which is written in the bracket over here. This is base word, carry. अब इसको हमने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, carries. क्या हमने किया है चेंज, आप फील कर सकते हैं, देखिए ज़रा, CARRY, ठीक है। हमने क्या किया है, y को ख़त्म कर दिया है। अब देखिए इसमें y है, इसमें नहीं है। y को ख़त्म करके हमने क्या किया है, IES लगा दिया है इसके आगे। He plays football in the evening. Plays, इसमें हमने कुछ भी ख़त्म नहीं किया, हमारा ये वर्ड है play, और जस्ट वी हैव एडिड s to the verb play. The little girl misses her lost doll. Misses, miss. Our base word is miss, and we have added es to miss, misses. Doctor goes to hospital every day. Base word is go, and we have added es, goes. Clear? Go के आगे हमने क्या ऐड किया है, es. मिस के बाद हमने क्या ऐड किया है, es. Play, इसके साथ हमने s ऐड किया है, और कैरी में बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया, IES लगा दिया, और उसका एक लेटर भी ख़त्म कर दिया, y भी ख़त्म कर दिया। My mom mixes sugar in milk. Mixes, mix. The word is mix. MIX, mix. We have added es to mix, mixes. My mom mixes sugar in milk. Clear? So let's learn what's the reason behind this. हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से वर्ड में es ऐड करना है, कौन से वर्ब के साथ हम s ऐड करेंगे, और कौन से वर्ब के साथ हम IES ऐड करेंगे। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये वर्ब्स यूज़ होते हैं, और जो प्रेजेंट टेंस है वो हम बहुत यूज़ करते हैं, हर लेवल पे, हर स्टेज पे हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट दिस रूल, कि किस चीज़ के साथ हमने IES लगाना है, किसके साथ S लगाना है। सो लेट्स स्टार्ट। वी ऐड IES टू द वर्ब्स। हम उन वर्ब्स के साथ IES लगाते हैं विच एंड विद कंसोनेंट लेटर्स बिफोर Y। ऐसे वर्ड्स जिनके एंड पे Y आता हो, ठीक है, जिनके एंड पे Y आता हो, जैसे कि नीचे एग्जाम्पल्स में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, दे ऑल एंड विद Y। सब उन वर्ड्स के एंड पे Y आता हो, और Y से पहले क्या आता हो, विच एंड विद कंसोनेंट लेटर्स बिफोर Y। Y से पहले कंसोनेंट लेटर आता हो, ठीक है, Y से पहले क्या आता हो, कंसोनेंट लेटर।
अब आपने देखना है कि कैरी, इसमें आर साउंड आई हुई है, ठीक है। अब आपने देखना है कि हमारे वाउल लेटर्स कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनमें से कोई भी लेटर वाई से पहले नहीं है, ना ही ए है, ना ही आई है, ना ही वाई से पहले ओ है, ना ही यू है। अब वाई से पहले क्या लेटर आया है, आ। वाउल्स के अलावा बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम कंसोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो वाई से पहले कौन सा लेटर है, कंसोनेंट। जिन वर्ड्स में वाई से पहले कंसोनेंट लेटर आएगा उसका हम वाई ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके वाई को कट कर देंगे और उसके आगे हम लगा देंगे आई ई एस, लाइक कैरीज। नेक्स्ट इज प्ले। अब प्ले भी वाई पे ख़त्म होता है, लेकिन हमने इसके आगे सिर्फ एस लगाया है। ऐसा क्यों किया है, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसके ये रीज़न है कि देयर इज़ नो कंसोनेंट बिफोर वाई। वाई से पहले कंसोनेंट नहीं है। वाई से पहले क्या साउंड आ रहा है, ए, वाउल, इट इज़ वाउल लेटर। तो अगर वाई से पहले कंसोनेंट आएगा तो हम वाई को ख़त्म कर देंगे और आई ई एस लगा देंगे, ठीक है। अगर वाई से पहले वाउल आ जाएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई भी लेटर आ जाएगा तो फिर हम उसके आगे एस लगा देंगे। बाय, नेक्स्ट वर्ड इज बाय, बी यू वाई। अब आप मुझे बताइए कि यू क्या है, कंसोनेंट है या वाउल है? यू इज अ वाउल लेटर। अब यू वाउल है, दैट्स वाई वी विल नॉट रिमूव वाई एंड वी विल नॉट ऐड आई ई एस, ठीक है। अगर यहाँ पे आर होता, एस होता, टी होता, डी होता तो फिर हम क्या करते, इसके वाई को ख़त्म करके आई ई एस लगा देते, लेकिन अब ये वाउल लेटर है इससे पहले, सो वी विल ऐड ओनली एस टू बाय एंड वी विल मेक इट लाइक दिस, बायज। Cry, the baby cries. Cry is the next word, and in this word you can see there is r sound, there is r sound, r letter before y. R is a consonant, so again we will remove y, हम y को घर भेज देंगे और हम क्या करेंगे, c और r के साथ हम i e s लगा देंगे, तो it will become cries, ठीक है। अब इस स्लाइड में आपने 2 पॉइंट्स पढ़े हैं वाई से रिलेटेड। दोनों सूरतों में, दोनों तरीकों में वर्ड के एंड पे वाई है, लेकिन हमने वाई से जो पीछे वाली साउंड है, पीछे वाला लेटर है, उसको फोकस करना है, उसको देखना है। अगर तो वाई से पीछे कंसोनेंट है देन वी विल रिमूव वाई एंड ऐड आई ई एस। इफ़ देयर इज़ वाउल बिफोर वाई, अगर वाई से पहले वाउल आ रहा है तो वी विल नॉट मेक एनी चेंज, यू विल जस्ट राइट एस, ठीक है। 2 वेज हैं। वंस अगेन, इफ देयर इज कंसोनेंट प्लस वाई देन वाई को रिमूव करें और आई ई एस ऐड करें। इफ देयर इज वाउल प्लस वाई देन जस्ट राइट एस। We add es to the verbs which end with. अब es कहाँ लगाते हैं, इसमें हम वो देखेंगे जो वर्ड्स एंड होते हैं, जिनके वर्ड्स में, जिन वर्ड्स के लास्ट में, जिन वर्ब्स के लास्ट में एस एच मीन्स श साउंड, श, जैसे उर्दू में हरूफ तहज्जी में शीन होता है ना, श, सी एच च, चे की साउंड, हरूफ तहज्जी में चे होता है ना, चे साउंड, ओ, स, एक्स। जिन वर्ड्स के एंड पे ये लेटर्स आते हैं उनके साथ हम ई एस ऐड करते हैं, लाइक वॉश। वॉश में कौन सी साउंड आ रही है लास्ट में, श, एस एच, पहला कॉम्बिनेशन हमारा एस एच, वॉश, वा प्लस श, वॉश। इसके आगे हम लगा देंगे ई
एस, वॉशेस। क्या बोलेंगे इसको? वॉशेस। टीच, फिर च साउंड पे ख़त्म हो रहा है, च, देखिए च, टीच। टी प्लस च, टी के साथ च लगा दें तो टीच। इसके आगे हम क्या ऐड करेंगे? ई एस, सो इट विल बी टीचेस, टीचेस। गो। अब नेक्स्ट हमने बताया है कि जिन वर्ड्स के एंड पे ओ आता है उनके आगे भी हम ई एस लगाते हैं। गो, गोज, it will be goes. Next is S. It might be double S. Miss. जिन वर्ड्स के एंड पे डबल एस आता है, मिस, मिसेस, हमने आगे इसके क्या ऐड कर दिया? ई एस, मिसेस। मिक्स, एक्स, एक्स साउंड आई है ना, एक्स लेटर, साउंड, मिक्स। तो एक्स के बाद हम क्या लगाएंगे? ई एस। हम यहाँ पे आई ई एस भी नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे जस्ट एस भी नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ई एस। सो द वर्ब्स विच एंड विद श साउंड, च साउंड, or s or x means sh letters, ch letters, o, double s या x जिनके एंड पे आएगा उनके साथ हम es ऐड करेंगे। एंड मोस्ट verbs टेक s। इनके अलावा बाकी जो सिंपल वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, उनके साथ हम s ऐड करते हैं। तो अब हमने पढ़ा है कि जब y से पहले कंसोनेंट आ जाए तो हम y को ख़त्म करके IES लगा देंगे, और जब y से पहले वाउल आ जाए तो हम उसके आगे जस्ट s लगा देंगे, और जो वर्ब्स SH, CH, O, डबल S और X पर ख़त्म होते हैं उनके बाद हम ES ऐड करेंगे। इसके अलावा जो वर्ब्स हैं, उसके अलावा भी तो वर्ब्स होते हैं जो डबल वाउल्स पर ख़त्म हो रहे होते हैं, जो डबल कॉन्सोनेंट्स पे ख़त्म हो रहे होते हैं। जैसे रन वर्ड है, रन के एंड पे एन आ रहा है, एन इज़ अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। जैसे फ्री वर्ब है, फ्री में डबल ई आ रहा है, ई इज़ वाउल। इसी तरह से टाई वर्ड है, टाई करना, बांधना किसी चीज़ को, तो उसमें आई ई आ रहा है, तो वो भी वाउल्स पे ख़त्म हो रहा है। इन सब वर्ड्स के साथ हम जस्ट एस ऐड कर देंगे, ठीक है। आपको रूल्स उनके इसलिए एक्सप्लेन नहीं किए कि यू विल गेट कन्फ्यूज्ड विद सो मैनी रूल्स, ठीक। आपको अभी सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत थी कि वाई में क्या डिफरेंस है, हम कहाँ पे आई एस लगाएंगे, कहाँ पे हम एस लगाएंगे, और हम ई एस कहाँ पे ऐड करेंगे, और विद द रेस्ट ऑफ वर्ब्स वी विल राइट only S. Clear? This is the worksheet which I have prepared for your practice. Question 1 of worksheet is circle the vowel letters. All the 26 alphabets are given on the first page of your worksheet, and you will circle the vowel letters. Like the first vowel letter is A. Next is E. Then I. O, U, A, E, I, O, U. These are vowel letters and all the rest are, और बाकी सारे क्या हैं? Consonants. So there are two types of letters, vowels and consonants. Question number 2 in your worksheet is match the verbs and write the answers in column C. In column A, you have the verbs without S, ES or IES, without any change. These verbs are called base forms of verbs. Column A में आपको verbs किस शक्ल में मिलते हैं? Base form. Base form of verb आपको column A में दी हुई है, और इसके अंदर जो change होना है, ES ऐड होना है या IES या सिर्फ S ऐड करना है, ये आपको कॉलम बी में दिए हुए हैं. यू विल मैच द verbs and write answer over here in column number C. For example, carry. First word is
carry, and its answer is carries. You will write carries in box over here. Carry, carries. Right answer in column C, carries. Marry, marries. Right answer over here, marries. Tie, ties. आपको बताया था, देखिए आप इस टाई वर्ड में गौर कीजिए, इसके एंड पे वाउल साउंड आ रही हैं, दोनों वाउल साउंड्स हैं, बट वी हैव जस्ट एडिड एस टू इट. इस डिटेल में आपने नहीं पढ़ना, आपने जस्ट अपने एस एच सी एच ओ एस और एक्स वर्ड्स पे फोकस करना है, और वाई वाला जो आपको रूल बताया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू वाइज. दोनों वाई वाले वर्ड्स होते हैं, लेकिन एक के साथ हम आई ई एस लगा रहे होते हैं, दूसरे के साथ हम जस्ट एस लगा रहे होते हैं. तो उसकी रीज़न आपने लर्न कर लेनी है. आपकी फिंगर टिप्स पे हो, आप चलते फिरते अपनी मॉम को बताइए कि मॉम मुझे पता है कि हम वाई कहाँ लगाते हैं और एस कहाँ लगाते हैं और आई ई एस कहाँ लगाते हैं. ठीक है, और सोने से पहले आप अपनी मम्मा को ये बता के सोइए, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और ये चीज़ें आपके ब्रेन में अच्छी तरह से फिट हो जाएं. क्योंकि ये बहुत मेजर मिस्टेक होती है बच्चों की जब वो सिंपल सेंटेंसेस राइट कर रहे होते हैं. सो यू विल डू द रेस्ट ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस. The third question is color the boxes with correct verbs. Different verbs are given in this table, and some are correct and the others are wrong. आपने क्या करना है, जो करेक्ट वर्ब्स हैं उनके बॉक्स को कलर कर देना है. ठीक है, कोई सा भी कलर आप कर सकते हैं इसमें. फॉर एग्जाम्पल in the first box is the verb relax. इसमें क्या वर्ब है, relax. इसके एंड पे एक्स आ रहा है, बट योर टीचर हैज़ एडिड आई ई एस. अब आपने इसको एनालाइज करना है, आपने देखना है कि टीचर ने एक्स का क्या रूल बताया है. क्या एक्स के साथ हम आई ई एस लगाएंगे या हम ई एस लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको देखना है, और फिर अगर कलर की ज़रूरत है तो आपने करना है. इफ़ यू फील दैट इट इज़ रॉन्ग देन लीव इट. कैच, नेक्स्ट वर्ड इज़ कैच. कैच में लास्ट साउंड च आ रही है, और आप च साउंड के साथ आपकी टीचर ने आपको क्या बताया है, ई एस ऐड करेंगे या एस ऐड करेंगे. ठीक है, आई हैव एडिड एस ओवर हियर. इफ़ इट इज़ करेक्ट कलर इट, एंड इफ़ इट इज़ इनकरेक्ट लीव इट. ट्राइज, टी आर वाई. ट्राई के स्पेलिंग्स क्या होते हैं, टी आर वाई. अब टीचर ने y को ख़त्म करके आई ई एस लगाया, क्योंकि y से पहले र साउंड आ रही थी, विच वॉज अ कंसोनेंट. कंसोनेंट प्लस y इज इक्वल टू आई ई एस. क्लियर. सेज, से वर्ड होता है कहना, से, एस ए वाई, से, से. अब इसके आगे टीचर ने आई ई एस लगा दिया. आप खुद देख लीजिए कि ये सही है या नहीं सही है. करेक्ट है तो कलर कीजिए, नहीं है तो नेक्स्ट पे देखिए आप. पुश, 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 पुश. इसके आगे मैंने एस लगा दिया है. पुशेस होता है वर्ड, ये मैंने एस ऐड किया है, इसको देख लीजिएगा. मिसेस, ओबेज. आवर बेस्ट वर्ड इज मिस. हियर इज ओबे. स्पिन, कम, मिक्स. अब आप इनको आइडेंटिफाई करें विच वन इज़ करेक्ट, और इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए. अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो यू कैन राइट इट इन योर रजिस्टर्स एंड डू प्रैक्टिस ऑन दैट. थैंक्स अ लॉट. दिस वाज